میری شادی احمد سے ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد کی رسموں میں نے جب انہیں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بلاک کی خوبصورت تھے۔ میں نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں تو اپنے شوہر کو دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ مجھے خوش قسمتی سے شہر کا امیر ترین اور خوبصورت شوہر ملا۔ میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، لیکن دلہے کی طرف سے آنے والے لوگوں کے چہرے پر خوشی کی بجائے پریشانی کے آثار تھے۔ مجھے خود پر شک ہونے لگا، کہیں میں ان لوگوں کو کمتر تو نہیں لگی۔ لیکن میری ساس میری راہ میں واری واری جاتی۔ انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ اس شادی سے ناخوش ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصتی کا وقت آ گیا۔ مجھے میری ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا گیا، لیکن ان سب کے دوران میرا شوہر میرے قریب نہیں آیا اور نہ ہی اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ وہ مجھ سے کچھ کھینچا کھینچا سا لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میرا دلہا میرے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ میری ساس پیچھے والی سیٹ پر تھی۔ گاڑی میرے سسرال کی طرف بڑھنے لگی، دل میں ہزاروں اندیشے لیے۔ جب میں اپنے سسرال گھر کی دہلیز پر اتری تو مجھے لگا میرا شوہر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ اشارے سے مجھے ایک طرف بلا رہا تھا کہ ساس میں اسے دیکھ لیا اور اسے دوسری طرف لے گئی۔ یہ رویہ بھی عجیب تھا، گویا شوہر سے کو مجھ سے بات کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ خیر مجھے نندو وغیرہ نے گھیر لیا، مجھے اوپر لا کر بٹھا دیا اور رسمیں شروع ہو گئی۔ میرا شوہر اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ جن کو میں نندے کہہ رہی ہوں میرے شوہر کی چچازاد اور ماموزاد بہنیں تھیں، جو شادی کی ہر رسم میں پیش پیش رہی۔ خصوصاً میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہوں، میں کسی سے بات نہ کروں۔ تھوڑی دیر بعد جب رات گہری ہونے لگی تو مجھے اپنے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ جب اسی وقت میری ساس میرے کمرے میں داخل ہوئی، انہیں دیکھ کر ایک بار میرا دل بدل بجھتا گیا۔ میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بار بار میری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ بیٹی بس ایک بات کرنی ہے، میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، وہ ناز مزاج کا ہے، تمہیں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اسی کی کسی بات کا برا نہیں ماننا، اور ہاں اس کے ساتھ اکیلے باہر کبھی مت جانا، میں جب کہوں تبھی اس کے ساتھ جانا۔ ساتھ بہت ساری اور نصیحتیں کر کے کمرے سے چلے گی، مگر مجھے ان کی ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر میں احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بہت اجلت میں لگ رہے تھے، لگتا تھا جیسے مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے اشارے سے مجھے بیڈ سے کھڑے ہو کر نیچے اترنے کا حکم دیا۔ میں ان کی بات نہ سمجھتے ہوئے نیچے اتری اور وہ مجھ سے بولے، دیکھو رضیہ، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہیں ایک ایک بات تفصیل سے بتا سکوں۔ مقصد یہ ہے کہ تم یہاں سے بھاگ نکلنا، اپنا جوڑا اتار دو تاکہ تمہارے بھاگنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ تم کیا مجھ سے پر اعتبار نہیں کرتی؟ جانتا ہوں کہ امی نے تمہیں ہزار باتیں میرے خلاف کہی ہوں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ ایک الگ زندگی جینا چاہتا ہوں، اس گھر سے بہت دور جا کر رہنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو ہم محل میں شہزادے شہزادی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ میری ماں اور میری ماموزاد بہنیں ہمیں کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیں گی، اس لیے ہمیں یہاں سے دور جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ ابھی سب لوگ باقی رسموں میں مصروف ہیں، تو ایسا کرو اپنی شادی کا جوڑا تبدیل کر کے یہ چادر اوڑھ لو، اور میں تمہارا باہر انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی بھی تمہیں پہچان نہیں پائے گا، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ بند ہوگا۔ چھوٹے دروازے سے میں اور تم نیچے جائیں گے، اور اس کے بعد اس گھر کی طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ میری بات تمہیں کچھ دن کے بعد سمجھ آ جائے گی، جب ہم یہاں سے دور اپنے گھروں کے، لیکن اگر ہم یہاں رہے تو تمہارا جینا حرام ہو جائے گا۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرے دل میں بھی عجیب سا احساس ہوا، لیکن شوہر کا حکم سب سے افضل تھا۔ میری ساس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے باہر نہ جاؤں، مگر ان کی باتوں میں کچھ ایسا جادو تھا کہ میں نے فوراً خود کو سمیٹا اور وہ چادر اوڑھ کر نیچے سڑک پر انتظار کرتے احمد کے پاس پہنچ گئی۔ احمد گاڑی لے کر کھڑے تھے۔ گھر میں بہت ساری عورتوں کا شور آ رہا تھا،
सब लोग बातों में मसरूफ थे। अहमद ने मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी फराटे से बढ़ती दूर किसी मंजिल की तरफ निकल गई। मैं अहमद से बार बार पूछ रही थी कि वो गाड़ी में लेकर बाहर क्यों आए हैं, जबकि ये काम कल परसों या 2 दिन बाद भी हो सकता था। अहमद कहने लगे, हमारे घर की रस्में हैं, इन्हीं रस्मों में तुम्हें 10 दिन लग जाने थे, इसके बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता। मैं अपने खानदान में अपनी बदनामी भी नहीं चाहता कि इस घर की नई बहू लग चुड़ी है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों से मिलो जुलो। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं सिर्फ एक तरह जिंदगी गुजारें जिसमें किसी तीसरे की दखल अंदाजी कोई कोई अंदेशा ना हो। अपने शोहर की बातों से इत्तेफाक करती मैं जो दूसरे घर पहुंची, जो मेरे शोहर ने हम दोनों के लिए ले रखा था, तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये घर इंतहाई मामूली सा था, जबकि मेरा ससुराली घर बहुत शानदार था। वो किसी महल से कम नहीं लगता था। ये क्या है अहमद, ये घर तो हमारे शान और शान भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम शहजादे वाली जिंदगी गुजारेंगे? मैंने सवाल किया तो हंस कर बोले, हमें यहाँ थोड़ा अरसा ही रहना है, कमोबेश 1 डेढ़ साल, इसके बाद हम महल जैसे घर में दोबारा चले जाएंगे। अहमद की बात मुझे अजीब सी लगी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक कमरा था जहाँ पर चारपाई भी थी और एक खिड़की भी थी जिससे ठंडी हवा आ रही थी। गर्मियों के दिन थे। मैं जल्दी से चारपाई पर ढेर हो गई। अहमद ने मुझसे कोई बात नहीं की और दूसरे कमरे में चले गए, जैसे मैं उनकी शान में गुस्ताखी करती हूँ। बतौर बीवी मुझे चाहिए था कि पहले उनको बिस्तर बना कर देती, वो भी थक गए होंगे। मैंने खुद गर्जी से काम लिया, जल्दी से तो उसे कमरे में पहुंच गई तो कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे और ज्यादा एहसास जुर्म महसूस होने लगा। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने खुद को एक चादर में ढांप रखा था। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? कैसे आ सकती है आपके बगैर? आप चले, मैं आपके लिए बिस्तर बना देती हूँ। मेरी बात पर अहमद गुस्से से पत्थर हो गए। तो वहां जाकर सो जाओ और मैं यहीं पर ठीक हूँ। और हाँ, मुझसे आइंदा करीब आने की कोशिश मत करना। अहमद की बेरुखी देखकर तो मेरा दिल ही फट गया। और अहमद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ऐसा मत कहो। उससे पहले कि मैं कोई और बात कहती, उसने जोर से दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। मालूम नहीं था इतनी सी बात मेरे शोर को नागवार करेगी। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की खिड़की भी बंद कर दी। मुझे अजीब सा डर लग रहा था। अहमद भी यहाँ ना था। मेरी हालत बुरी हो रही थी। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं अहमद के कमरे की तरफ लपकी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे नाराजगी कायम रखूं। उनका दरवाजा खिलाफ वक्त खुला था। मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मुझे एहसास का फोन बजने की आवाज आई। मैंने फौरन देखा, अहमद के फोन पर उनकी माँ का नंबर जमग जगमगा रहा था। वो बाथरूम में थे। मैंने फोन खुद ही उठा लिया। मेरी सास मुझे बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो जैसे एकदम शांत हो गई। बेटी, तुम अपने शोर से कहो कि वो वापस घर आ जाए। हम उसे तंग नहीं करेंगे। वो कहाँ चला गया है तुमको लेकर? और मैंने तुमको मना भी किया था कि मुझसे पूछे बगैर बाहर मत जाना, और तुम होकर दूसरे घर चली गई। अहमद ने रात को मुझे एसएमएस भेजा था। वो कह रहा था कि अब आपके पास तभी आऊंगा जब मैं बाप बन जाऊंगा। इससे पहले इस घर की शक्ल भी नहीं देखूंगा। मेरी सास मुझसे मिन्नत कर रही थी कि तुम लोग घर वापस आ जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बाकी सभी रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बेटा और बहू शादी की रात कहाँ चले गए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इतने में अहमद बाथरूम से निकल आए। मुझे गुस्से से घूरने लगे। तुम्हें किसने कहा था कि मेरा फोन उठाओ? वो गुस्से से मुझ पर दौड़े और फोन लेकर बंद कर दिया। मैं परेशान कुन निगाहों से उनकी तरफ देखा। बोली, अहमद, मुझे लगता है कि हमें अम्मी के पास वापस चले जाना चाहिए। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता कि हम इतने सारे रिश्तेदारों के सामने इन्हें शर्मिंदा छोड़कर यहाँ आ गए हैं। वैसे भी ये कौन सा महल है, यहाँ भी तो हमारी जिंदगी वैसी ही है। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं वहीं रह लूंगी। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, उसने गुस्से से कहा। तुम रहोगी तो यहीं रहोगी, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब दोबारा अपने घर जाने की बात ना करना। उसके मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर मेरे तो रोक कंडे खड़े हो गए। सोचा नहीं था कि मेरा शोहर मुझसे इस कदर बेरुखी से पेश आएगा। ये वही था जो मुझे शहजादियों वाली जिंदगी के ख्वाब दिखा रहा था।
बहरहाल मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले दिन एक अजीब वाक़या हुआ। मैं दोबारा अपने शोहर के कमरे में आई तो उसने मुझे बहाने से बाहर भेज दिया। कहने लगा, तुम इधर जाकर सो जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम एक कमरे में रहें। वैसे भी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। तुम्हें मुझसे हया करनी चाहिए, ना कि मैं तुम्हें बताता फिरूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अहमद के मुंह से ये बातें बहुत अजीब लग रही थी। जिसने मुझे लाया ही यहाँ इसलिए था कि हम अकेले तना जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे। मुझे खुद से दूर रहने का कह रहा था। बहरहाल मैं क्या कर सकती थी। औरत की हया मायने आ जाती है। मैंने अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। अहमद अलग कमरे में रहते थे। वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाते, काज करते और फिर वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाते। मेरी जिंदगी बहुत अजीब हो गई थी। मेरे वालों से भी राब्ता नहीं था क्योंकि ने मुझे फोन नहीं दिया था। मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं यहाँ से बाहर ना निकलूं और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करूं। अच्छा नहीं होगा। अब मैं मुकम्मल तौर पर कैद की जिंदगी गुजार रही थी। सुबह शाम अपने कमरे में रहती। थकन ना होती तो मुझे रात को नींद ना आती। रात भर जागती रहती और दिन को कोई सोई रहती। सोने उठने की कोई रूटीन नहीं थी। एक दिन रात के वक्त उठकर मैं बाहर आई तो मुझे अहमद के कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं जैसे मैं उनके कमरे और उनकी तरफ बढ़ी तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि अहमद को उल्टियां आ रही थी। वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते वॉशरूम की तरफ जा रहा था। कमरे की खिड़की से मैंने ये मंजर देखा तो अहमद को आवाज देकर दरवाजा खोलने को कहा। खिलाफ तवक्का अहमद ने कमरे का दरवाजा खोल दिया, मगर मैंने देखा उसने खुद को एक चादर में ढांप रखा था। मेरे सामने वो हमेशा चादर में या फिर कोट कमीज में आता। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी तबीयत खराब लग रही थी, जबकि रंग जट पड़ रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कोई बात हुई है क्या? मैंने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में पूछा। नहीं, बस अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अहमद ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और इस वक्त उसका लहजा और बहुत अजीब रहा, मगर मैं खामोश रही थी। देर के बाद उसने मुझे कहा, अब सोने के लिए अपने कमरे में चले जाओ। बिना कोई बहस किए मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मेरी आंख उसके दरवाजे की दस्तक पर खुली। वो बहुत खामोश खुश लग रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो अहमद की हाथ में फोन था। उसने मुझे खामोशी रहने का इशारा किया। उसने मेरी फोन कान से लगा दिया। मैंने देखा फोन पर मेरी सास थी। वो मुझे मुबारकबाद दे रही थी कि उनकी वो उम्मीद हो गई है। इतनी जल्दी मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे वारिस दे दोगी। अपनी सास की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी तक मेरा और अहमद का कोई रिश्ता भी नहीं हुआ था। फिर मेरी सास ये बात कैसे कह सकती थी इससे पहले कि मैं कुछ कहती। अहमद ने दोबारा उनसे बातचीत शुरू कर दी। बस अम्मी, मैं आपसे वादा किया था कि जब तक एक वारिस नहीं दूंगा यहाँ से नहीं आएंगे। अहमद की बात सुनकर मुझे सख्त हैरत हुई। वो किस वारिस की बात कर रहा था और ना ही कोई ऐसी उम्मीद मुझे थी। थोड़ी देर के बाद सास का फोन बंद हुआ तो मैं अहमद से पूछने लगी कि उसने अपनी फैमिली, अपनी माँ को ऐसा क्यों कहा। अहमद ने मेरी बात का कोई असर नहीं लिया, कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसे मेरी बात का कोई फर्क ना पड़ता हो। वो खुशी खुशी बाहर जाने के लिए निकला और जाते हुए मुझे अपना ख्याल रखने का कहकर चला गया। मैं दिन भर सोचती रही कि अहमद ने मुझे ऐसा क्यों। शाम को घर वापस आया तो उसकी तबीयत कुछ खराब थी। मैंने यही सोचकर मजीद सवाल नहीं किए, बल्कि उसका ख्याल रखने लगी, उसकी खिदमत करने लगी। अहमद भी अब नरम पड़ गया था, लेकिन वो मुझे अपने करीब फिर भी नहीं आने देता था। मैंने देखा वो खुद एक चादर में लिपटा रहता, जबकि मुझे अपने करीब तो दूर की बात अपने कमरे में भी आने की इजाजत ना देता। अहमद मेरी नंदों से बात करवाई, जिन्होंने मुझे अमित से होने पर मुबारकबाद दी। सब पूछ रहे थे कि हम लोग घर कब वापस आएंगे। मैंने अभी कह दिया कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा इसके बाद भी वापस आ सकेंगे, क्योंकि ये मेरे शौहर की ख्वाहिश है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था की हरकत अजीब होती जा रही थी। मैंने देखा वो खुद को ज्यादा लंबी चादर से ढांपने लगा था। मुझे उसके चलने फिरने के अंदाज से लगा जैसे उसका वेट बढ़ रहा हो। और ये बात एक बार नहीं बल्कि 20 बार नोट की, मगर अहमद इस बारे में कोई बात नहीं करता था। मैंने अहमद से कई बार कहा, तुम्हारा पेट औरतों की तरह बढ़ रहा है। अहमद इस बात को कोई जवाब नहीं देता था।
एक दिन मैंने सोचा क्यों ना अहमद का टेस्ट करवाऊं, किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं। उसकी तकलीफ तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वो औरतों की तरह लगने लगा था। अहमद की ये हालत देखकर मैं डर सी गई थी। 8 महीने गुजरे तो अहमद वाकई किसी हामला औरत की तरह नजर आने लगा था। उसकी औरतों वाले कदोखाल देखकर मैं तो जान जाती रही, लेकिन इससे पहले कि मैं घर कोई डॉक्टर बुलवाती, अहमद ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। कहने लगा किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैंने घर वालों को कह दिया है कि तुम उम्मीद से हो, तुम ये बच्चा पैदा करोगी। अब ये बच्चा हम दोनों के लिए वारिस की हैसियत रखता है। खुदा के लिए चुप रहो, वरना मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। क्या मतलब है अहमद, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको कोई बीमारी है, हमें डॉक्टर को चेक करवाना लेना चाहिए। मेरी बात पर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर को चेक करवाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं उम्मीद से हूँ, हमारा वारिस इस दुनिया में आने वाला है, और तुम होके अजीबोगरीब बातें कर रही हो। अहमद ने मुझे डांट दिया तो मैं खामोश हो गई। लेकिन एक मिनट बच्चा कैसे पैदा कर सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने 1 महीना अपने शोहर की खूब खिदमतें की, उसे वक्त पर खिलाती पिलाती, हर चीज का ख्याल रखती, लेकिन अहमद मुझसे फिर भी बात ना करता। उसके चेहरे पर अजीब सा एहसास नदामत होता। वो मुझसे शर्मिंदा रहने लगा, जबकि अब मेरे सामने चादर वगैरह ना ओढ़ता, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं उसकी हकीकत जान चुकी हूँ। फिर ठीक 9 महीने बाद हमारे घर में एक डॉक्टर आया, जो रवैया से अहमद का दोस्त लग रहा था। उसने आकर बच्चे की पैदाइश में हमारी मदद की, और अहमद ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। तो मुझे यकीन हो चुका था कि वाकई अहमद की हकीकत कुछ और है, और जो नजर आते हैं वो नहीं है। अब फिर उनके दोस्त डॉक्टर अकील ने मुझे बता भी दिया कि अहमद एक नामुकम्मल इंसान के तौर पर पैदा हुआ था। लेकिन फिर उन्होंने डॉक्टर अकील से मिलते हुए अपना इलाज करवाया और एक औरत जैसी निसामत हासिल कर ली, लेकिन अपनी माँ बाप को इस बात से आगाह नहीं किया। अहमद की माँ शहर की अमीर तरीन औरत थी। वो इस बात को अपने लिए अपने दाग की तरह समझती थी कि उसके घर पैदा होने वाला बेटा एक मर्द नहीं बल्कि औरत है। इसलिए अहमद इस मामले की नजाकत को समझते हुए इस बात को अपनी माँ से राज रख रहा, लेकिन अपनी माँ के सामने कम ही जाता। माँ को अपने बेटे की हकीकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन माँ कब तक सब्र कर। एक दिन उसने अपने बेटे के सर पर सहरा सजा दिया, और यूं उस हवेली में एक बहू भी आ गई। लेकिन अब कमी थी तो एक वारिस की। अहमद जानता था कि उसकी माँ का मुतालबा उस हवेली का वारिस होगा। अहमद ने माँ की बात लबों पर आने से पहले ही अपनी बीवी यानी अपने जीवन साथी को दूसरे घर में मुंतकिल कर दिया। खुद मेडिकली फार्म बनाने के बाद जब उसके यहाँ वारिस बना हुआ तो घर वापस जाने का फैसला किया गया। लेकिन ऐसे में मेरी शख्स की दर्जियां बिखर चुकी थी। मैं तो नॉर्मल इंसान से शादी करके घर में आई थी। मैं नहीं जानती थी कि वारिस पैदा होने के लिए लगता है इसे पूरी तरह बच जाऊंगी, मेरी जिंदगी की खुशियां मुझसे रूठ जाएंगी। मेरी कोख तो खाली थी। मुझे अपनी जिंदगी में एक मुकम्मल इंसान चाहिए था, जिसका मकसद अपनी माँ को खुश करना नहीं बल्कि मेरे साथ जिंदगी गुजारना हो। और पूरे 1 साल बाद हम अहमद के घर गए तो घर का माहौल बदला हुआ था। अहमद ने खुद को पहले की तरह कर लिया था। वो अपना भरम कायम रखे हुए था, जबकि मेरी सास ने सबको बताया था कि उनके घर पोता पैदा हुआ है, लेकिन उन सब में मैं दम घुट रहा था। मैंने अहमद की हकीकत सबके सामने लाकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी, अपनी जिंदगी में बर्बादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैंने खामोशी से अहमद के वो सोने की हवेली छोड़ दी, क्योंकि मैं वहां से खुश नहीं थी। औरत को जिंदा रहने के लिए दौलत के अलावा एक खानदान की जरूरत होती है। अहमद ने मुझसे ये तो कहा था कि मैं सारी जिंदगी उसके साथ रहूंगी, एक बीवी की तरह इज्जत देगा, मुआशरे में मेरा मुकाम होगा। लेकिन ये जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। अब मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन मैंने अहमद से तलाक नहीं ली, क्योंकि मैं घर वालों से बहुत दूर हूँ। आपके ख्याल में अगर मैं किसी और शख्स से निकाह करूँ तो अहमद से तलाक लिए बगैर मेरा ये निकाह जायज होगा या नहीं, जिसकी हकीकत कुछ और थी? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा।